اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ بابزی وقار اساں بیٹھے سے کاروان عشق مصطفیٰ پلیٹ فارم تو جدی چیف گیسٹ ہیں پہ جناب محترم سابقہ کونسلر لطیف آباد و آرٹی سبزی منڈی رحیم خان رانا طارق محمود صاحب سارے چیف گیسٹ ہیں پہ تے آج دی ساری بزم دے وچ ایک سارے پیارے مہمان اساں ہی وقت جام ریفریشمنٹ پوائنٹ تے ماشاءاللہ پروپریٹر جام محمد عظیم بخش قادری صاحب بنے جن کا تعلق آستانہ عالیہ سوئی شریف دے نالے خدمت گزار ہیں آستانہ عالیہ دے کہ انہاں دی رہائش بھائیشاہ محمد رحیم خان دے وچ انہاں دی رہائش ہے انہاں نے ماشاءاللہ بڑی عرصہ جڑا نا قادری سلسلے دے نال وابستگی قادری سلسلے دی خدمت سوئی شریف آستانے دے نال بڑی محبت کیتی ہے اس تو پہلے اساں انہاں دا تعارف گھنوں یا انہاں دا اظہار خیال گھنوں اس تو پہلے اساں اپنی کاروان عشق مصطفیٰ دی پوری ٹیم جڑی سارے نال محبت کرن دی ہے جڑے سارے فالوورز ہیں سارے نال محبت کرن والے ہیں کیونکہ کاروان عشق مصطفیٰ دا مقصد ہے پورے پاکستان دے اولیاء اللہ جنہاں نے دربار ہیں جنہاں دے خادمین ہیں انہاں دے حال احوال انٹرویو جڑا نا اساں لوکاں دی گوشت گزار کریں رہے ہیں جیسے دوستاں تک جیسے دوست این وجہ تو بڑی محبت عقیدت رکھتے ہیں جی میں ہی کہ ماشاءاللہ عامر فرید قریجہ صاحب چاندری پہلے آستانہ عالیہ بابا منیر چشتی صاحب دے چلا گاہ جڑے ڈیرا چلا گاہ ہی بھی ہے ڈیرہ فریدی چوک شہباز پور دے وچ آئیں بڑا پیار دیتوں نے بڑی محبت کیتوں نے صرف اولیاء اللہ دی محبت دی وجہ تو کہ اولیاء اللہ دی محبت نہ چیز کو چیز بنا دیتی ہے اگر کوئی بندہ وابستگی کرے دے سچے لوگوں دے سچے ادارے پہ سارا مشن یہ ہوئی ہے پیا اساں سب تو پہلے اظہار خیال گنسوں سارے مہمان جنہاں کو اساں جنہاں دی پرخلوص دعوت دے آئے سے جناب محترم عظیم بخش جام عظیم بخش قادری صاحب یہ سلامی کرے سن اپنا اظہار خیال کرے سن آستانہ عالیہ سوئی شریف دا تعارف جڑی انہوں نے انہوں کی خدمت کی ہے یا اتنا انہوں نے کرم نوازی دی ایک گال میں لیے اتو تک دسے سن اساں انشاءاللہ رانا صاحب دا بھی اظہار خیال گن ناچیز کو فقیر نذیر احمد خان حسینی آگدن آستانہ عالیہ کمبر شریف دے نال ساری وابستگی ہے نقیب و ثنا خان سے لوگ بڑی محبت کریں عظیم بخش صاحب تساں تعارف کروے سو اپنے آستانے دا تساں اپنا اظہار خیال کرے سو اپنے کرم نوازی دا تے کتنے سالاں تو ماشاءاللہ تساں ہوندے رہے جڑے آستانے دے تساں اپنے کرم نوازی جڑا بیان کرے سو کاروان عشق مصطفیٰ اساں حضرت جلیانی بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھیا تھے سبحان اللہ ٹھیک ہے حضرت اجاز سے یہ ٹائم گدی نشین ہے سبحان رحمۃ اللہ اللہ علیہ سبحان اللہ حضرت جلیانی بادشاہ سے ساری زندگی اساں اتھے ہی رہے ہوئے اساڈا دم اساڈا ایمان ہر چیز اساڈا وہی حضرت جلیانی بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ اجاز سے ہی ٹائم گدی نشین سکھا دیتے حضرت جلیانی بادشاہ وہی تصویر نکلی جڑا پانی جاری تھی گیا اب حضرت جلیانی بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ میں مدینے پاک دے غسل کیتا وضو بنایا نماز دا اتوں میری گہری تے وہ جڑی تصویر یہ کھوئی دے وچ آ گئی انہیں ڈٹھی وہ ہر چیز اپنی پہچان کی بھی یہ میری تصویر حضرت جلیانی بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ سوئی شریف مزار ہے حضرت جلیانی بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ اساں ساری زندگی اتھے ہی بھی گزارنی اور اساں بھیا جو اتھے ہی تھا وہ ساری جماعت ہے جلیانی بادشاہ سے رحمۃ مالک کیا بات ہے جناب یہ آپ کاروان عشق مصطفیٰ سے ایک بہت بڑی روحانی درگاہ کے حوالے سے بات چیت سن رہے تھے اور زبانی جام عظیم بخش صاحب جو جن کا روحانی فیض جن کو ملا ہے آستانہ عالیہ سوئی شریف سے حضرت
जिलानी दरगाह शरीफ, सूई हज़रत शरीफ वाली दरगाह शरीफ। सूई शरीफ वाली दरगाह शरीफ से इनको फैज़ मिला है और वहाँ की जो दरबार के रूहानी पेशवा हज़रत जिलानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गौसुल आज़म की आल में से हैं और आज के जो मौजूदा गद्दी नशीन हैं जिनके पास आप दुआ करवाने के लिए जाते हैं, पीर इजाज़ हुसैन शाह सईं, हज़रत इजाज़ हुसैन सईं कादरी और कादरी सिलसिले के रूहानी पेशवा हैं। इस वक्त ये कुछ देर पहले बता रहे थे कि अगर वो वहाँ पर चले जाएं तो वो इनके लिए जो दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ़ होता है। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि अल्लाह वालों को, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। जैसे ये तस्बीह की बात फरमा रहे थे कि मदीने शरीफ वाली तस्बीह खूब मुबारक से निकली, तो ये अल्लाह वालों की दुआ में बड़ा असर होता है। अगर कोई बंदा अल्लाह वालों के पास दुआ करवाने के लिए जाता है, अल्लाह वाले उनका खाली जो दामन है ना दुआ से माला माल कर देते हैं, यानी खाली झोली ईमानी दौलत से भर देते हैं। हमने पाकिस्तान में जाना है, कई वलियों की दरगाहों पे हमारी 25 साला सर्च है, जहाँ पर हर जगह पर एक अनोखी करामत मिलती है, अनोखा ही वहाँ से एक दुआ का निज़ाम मिलता है। ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अल्लाह वालों को नवाजा हुआ है। असल में बात यह है कि करामत, मोइज़ा और कुदरत ये चीज़ें एक हैं। कुदरत अगर कुदरत से हो जाए वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। अगर कोई नबी मोइज़ा दिखा दे तो उसको नबी का मोइज़ा कहा जाता है। अगर कोई वली करामत ज़ाहिर कर दे उससे नहीं होती, वो होती कुदरत से है। अगर वली से करामत हो जाए तो उसको करामत कहते हैं। कुदरत, मोइज़ा और करामत, ये हमारे मुर्शिद कंबर वाले से भी फरमाते थे कि ये चीज़ें एक ही हैं। मोइज़ा हो चाहे करामत हो या कुदरत से जो हो, अगर ये सारी चीज़ें होती एक है, करने वाला अल्लाह है। बंदे का ईमान होना चाहिए, इसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात इन्होंने पत्ते की है, बड़ा मज़ा आया सुन के, ईमान ताज़ा हुआ। यकीनन हमारे जो दोस्त कारवान इश्क़ मुस्तफ़ा से वाबस्ता हैं, जो मोहब्बत करते हैं, इस बात को फॉलो भी करेंगे और उससे खुश भी होंगे और इसको लाइक भी करेंगे, आगे भी पैगाम पहुँचाएँगे। और इस वक्त हमारे इस जाम रिफ़्रेशमेंट पॉइंट के मेहमान जो हैं, चीफ़ गेस्ट जनाब राना तारिक महमूद साहब, साबका कौंसलर लतीफ़ाबाद, भारतीय सब्ज़ी मंडी रही मेर खान। आपने गौस पाक की राना साहब तुसी जेड़े ना गौस पाक की शान, उन्हां दी आल दी शान तो सुनी है ना कि इन्होंने सूई शरीफ के हवाले दे नाल इन्होंने एक इज़हार किया है, तो तुसी अपने लफ्ज़ों दे विच थोड़ा जा इज़हार ख्याल कर दिओ ते साडे दोस्तां नूं बड़ी खुशी होएगी। नहायत ही काबिल कदर इज़्ज़त माप मेरे दोस्त जनाब नज़ीर हमसा हुसैनी साहब जो हमें गाइड करते हैं, 70 हमें अपनी अमली और अच्छे मशवरे, अच्छी नसीहतें अता करते हैं, जिससे हम पैरोकार होकर लोगों की भलाइयों के लिए सुनते हैं। ये हमारे नए दोस्त हैं, इन्होंने हमें बताया कि पीर इजाज़ साहब जो गौस आज़म के सिलसिले के आदि सिलसिले के हैं, रूहानी पेशवा हैं। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने ये ऐलान फरमाया कि मेरा कदम हर वली के कंधे पे है, सबसे पहले जिन्होंने इनको माना हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले आपने कहा मेरे कंधे पे गौस आपका कदम है, तस्लीम किया। क्योंकि आपकी करामतें और गौस आज़म का जो गौस बेबहा हैं, बेशुमार हैं, जिन्हें हम वक्तन वक्तन पेश करते रहते हैं। इन्होंने अपने मुर्शिद की बताई, पीर इजाज़ साहब की तस्मीर की बात बताई, ये भी एक मौजूद में से है। अल्लाह वाले की करामत ऐसी होती है, वो ज़हरी भी होती है, बातनी भी होती है, ज़हरी भी होती है, बातनी भी होती है। इनके पीर इजाज़ साहब ने जो इन पे फैज़ अता किया, जिससे मुतफीज़ हो रहे हैं, हज़रत जिलानी बादशाह रहमतुल्लाह पीर जिलानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका फैज़ इन पे जारी और जारी रहेगा। क्योंकि ये मानने वाले हैं, हर चीज़ है मान पे, ईमान होना चाहिए। ईमान जो मानने वाला होता है ना, फिर उसकी हर तरफ से पीर जो है निगहबानी करता है। पिछले दिनों में हम एक जगह बैठे थे, पीर इमाम बख्श साहब रुकन पीर वाले,
امام شاہ رحمۃ रहमतुल्लाह ताला, उनके एक मरीज़ ने वाक़या सुनाया कि हमारा उनका एक मरीज़ था जो उनकी खिदमत करता था, झाड़ू वगैरह देता था, गद्दी वगैरह गद्दी वगैरह बिछाया करता था, मसल्ला उनका साफ किया करता, उनका जूते साफ करता. उनको ऐसा फैज़ हुआ कि एकदम अब मौज में बैठे थे, उसने ताज़ी गद्दी बिछाई थी. गद्दी बिछाई, जनाब मुर्शिद पीर मान बड़ी सरकार तशरीफ रखे ले आए, बैठे ना घर से पैगाम आया कि पैसे चाहिए कुछ चीज़ के लिए. क्या बात. पीर इमाम साहब की फरमाया, और भाई उठाओ, और वो अपने मुर्शिद को, अपने वो मरीज़ को बता रहे हैं, खिदमतगार से बातें कर रहे हैं, और मियाँ ये गद्दी उठा, इसको पैसे दो. वो आदमी इतना परेशान हुआ कि मैंने गद्दी बिछाई है, गिंदी बिछाई है, इसमें तो कुछ नहीं था, मैंने बिछाया, झाड़ू दिया, इसमें ये सरकार फरमा रहे हैं कि उठाओ इसमें से पैसे दो इसको. बार तकादा सरकार फरमा रहे हैं, लेकिन मुर्शिद का हुक्म था. यूँ ही उस शख्स ने वो गंदी उठाई कि अल्लाह का करम था. उस जब वो गद्दी ऐसे वो बता रहा है, उसके बताने पे हमें ऐसा महसूस है कि अल्लाह वालों ने इसके दिल में कैसी मोहब्बत और उसके करम से कैसे दिखा रहे हैं. जब मैं गद्दी उठाई, पैसे ऐसे जैसे नहर चल रही, पैसे नहर चल रही कि मैंने ऐसे बुक भरा, उसको देखा. ये अल्लाह वालों जिनको अल्लाह ताला वास्ता ना, जिन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती, ये अल्लाह वाले वैसे नहीं बनते. ये मेहनत रात उठ राती जारियाँ कर दे, भजन ओगन हार कहा दे सब. तो ये अल्लाह वाले जो होते ना, ये बहुत बड़ी ये हमें हर आदमी नहीं, इनको भी ऊपर से, जैसे किसी को ख्वाजा का फैज़ है, किसी को दाता का फैज़ है, किसी को हज़रत बाबा फरीद शकरकंद वालों का फैज़ है, पीर सुई गैस वाले ने उनका पीर सुई शरीफ वाले जाज साहब जो है, उनके मरीज़ जैसे बताए, उनका करम है. उनका करम है तो ये लोग बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, वो आज भी मानते हैं. वो ये है अल्लाह वाले मनवाते नहीं, बल्कि माना जाता है दिल से. चले माशाल्लाह जी, ये थे राना तारिक महमूद साहब, साबका कौंसलर लतीफ़ाबाद भारतीय सब्ज़ी मंडी रही मेर खान. क्योंकि हिन रब को बहु प्यारे, रब राज़ी है इनाते, एमैनी पैर जुमदे असा अल्लाह वालियाँ दे. असल में बात यह है कि हर मुरीद पे पीर का फैज़ होता है. कोई आस्थाना जो है खाली नहीं है, कमी मुरीद के अंदर होती है फैज़ लेने के लिए. मुरीद अगर अपने मुर्शिद के सबक पक्के कर लेना तो मुर्शिद उसको नवाज देते हैं. जैसे अजीम बाग साहब बता रहे हैं कि इनको नवाजा, इनके माशाल्लाह जितनी भी बरादरी है, जो भी इनके मुरीदीन हैं, आस्थाने पे पाकिस्तान से आए हुए दूर दराज से लोग इनसे मिलते हैं, तो उनमें ये फैज़ की झलक देखते हैं. उनके अंदर जो जज्बात हैं इश्क के, ये अल्लाह वालों की बहुत बड़ी करामत है, अल्लाह वालों का फैज़ान है. इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहना है. और हमारा भी मकसद है कि हमने हर वली का जो मुरीद है या उनके आस्थाने से हमारी व्यवस्था की है, जहाँ तक कारवान इश्क़ मुस्तफ़ा पहुँच रही है, तो वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह हर फैज़ान को आगे पहुँचाएगी, आवाज़ के ज़रिए, अपनी इस अक़ीदत वाली प्लेटफार्म के ज़रिए, कारवान इश्क़ मुस्तफ़ा के ज़रिए, दोस्तों की मोहब्बत के ज़रिए. हमारा मकसद है जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान औलिया अल्लाह की कुर्बानियों से बना, अल्लाह वालों ने पाकिस्तान बनाया और उनकी दुआ से ही पाकिस्तान अब बचा हुआ है, आगे भी बचेगा. तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर रहे. अगले इंशाल्लाह मेहमान से 1-2 दिनों बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी कारवान इश्क़ मुस्तफ़ा से. इस वक्त हम जाम रिफ़्रेशमेंट पॉइंट के प्रोप्राइटर जनाब जाम अजीम बख्श कादरी साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने मेहमान नवाजी की, मोहब्बत की. राना तारिक महमूद साहब के बड़े मशकूर हैं, नज़ीर अहमद ख़ान हुसैनी और इनके तमाम कारवान इश्क़ मुस्तफ़ा के दोस्तों की तरफ से सारे पाकिस्तान के दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. पाकिस्तान जिंदाबाद.